Welcome to Inside News. This is Shekina bringing you the latest updates from across India. Today's top stories include a significant Maoist encounter in Chhattisgarh, weather updates from Andhra Pradesh, movements in Indian stock market, and crucial legal interventions by the Supreme Court in land disputes and the Walk Amendment Act. Let's get into the details. Well, let's get into the details. We'll begin with the security force in Chhattisgarh. Narayanpur district engaged in a fierce encounter with Maoists in Abu Jamaat forest area. The operation, which latest several days, resulted in the deaths of 8 Maoists and 1 police constable. Authorities recovered a significant cache of weapons, including rifles and explosives. The operation involved personnel from multiple districts and specialized units. 2 Maoists are yet to be identified and investigations are ongoing. Andhra Pradesh and Nellore district experienced thunderstorms accompanied by heavy rainfall. Areas like Kandukur and Indukurpet reported lightning and gusty winds causing minor disruptions. The state's Disaster Management Authority has advised residents to stay indoors during adverse weather conditions. అయిపోయిన తర్వాత తెలిపారు వెజిటేబుల్ Indian stock markets experienced a modest decline following a strong rally in previous sessions. Benchmark indices Nifty 50 and BSE Sensex dipped by approximately 0.2%. Despite this, the markets have outperformed regional pace, supported by strong domestic fundamentals and increased foreign investors inflows. Banking stocks led the gains, while IT and auto sectors faced some pressure.
The Supreme Court has intervened in the ongoing land dispute in Telangana's Kanch-Gachibowli area. The court issued an interim stay on all activities related to the controversial 400-acre land. The Telangana government has been directed to hold its actions until further orders. The case has attracted significant attention due to its implications on land ownership and legal compliance. Political parties including the DMK and IUML have filed petitions in the Supreme Court challenging the constitutional validity of the WACC Act 2025. The amendments aim to enhance transparency and regulation of WACC properties but have sparked debates over potential interference with religious autonomy. The petitions are under consideration by the court. Andhra Pradesh Chief Minister Chandrababu Naidu met with Prime Minister Narendra Modi to discuss the development of the state's capital, Amaravati. The meeting focused on expediting infrastructure projects, including the construction of permanent Secretariat, Assembly and High Court. Chief Minister Naidu emphasized the need for timely completion to boost the state's growth prospects.
SP West Martin Prakash Singh provided an update on the stone pelting that erupted between two groups in Sarjipur village, Hardoi, following an alleged statue vandalism. He explained that the conflict began with a verbal altercation the previous day, which escalated when one group claimed a statue of Mahatma Buddha was damaged. Singh mentioned that two police officers were already on site, and upon receiving the news of the disturbance, additional forces were swiftly deployed. The situation was soon brought under control. Statements from both parties were recorded and an FIR was being filed. Singh confirmed that the police presence ensured law and order and the situation was now peaceful. पुलिस के सामने भी पत्थरबाजी की गई। कल दो पक्षों में मामूली कहासुनी हुई थी। उसी कहासुनी को लेकर आज पुनः दोनों पक्ष आमने सामने हो गए, जिसमें एक पक्ष का आरोप था कि महात्मा बुद्ध जी की मूर्ति को खंडित किया गया है। इस पे पुलिस तत्काल जब सूचना हुई, यहाँ दो सिपाही पहले से थे और पुलिस आई और दोनों पक्षों को शांत कराई। दोनों पक्षों से तहरीर प्राप्त कर ली गई है, मुकदमा लिखा जा रहा है। यहाँ पे शांति व्यवस्था के लिए पर्याप्त पुलिस बल व्यवस्थापित कर दिया गया है। इस समय गांव में पूर्णतः शांति है, कोई बात नहीं है और पुलिस इसमें जितनी वैधानिक कार्यवाही होगी सभी नियमानुसार करेगी। क्या वजह क्या थी विवाद की? कल वजह केवल इतनी थी कि दो पक्ष, एक पक्ष गाना बजा रहा था, दूसरा पक्ष रामायण कर रहा था। सामने आ गए तो ये बात तुम धीमा करो, लेकिन उसका कोई इतना बड़ा रिएक्शन कार्रवाई की गई, क्योंकि पुलिस के सामने भी पत्थरबाजी की गई। कल दो पक्षों में मामूली कहासुनी हुई थी। उसी कहासुनी को लेकर आज पुनः दोनों पक्ष आमने सामने हो गए, जिसमें एक पक्ष का आरोप था कि महात्मा बुद्ध जी की मूर्ति को खंडित किया गया है। इस पे पुलिस तत्काल जब सूचना हुई, यहाँ दो सिपाही पहले से थे और पुलिस आई और दोनों पक्षों को शांत कराई। दोनों पक्षों से तहरीर प्राप्त कर ली गई है, मुकदमा लिखा जा रहा है। यहाँ पे शांति व्यवस्था के लिए पर्याप्त पुलिस बल व्यवस्थापित कर दिया गया है। इस समय गांव में पूर्णतः शांति है, कोई बात नहीं है और पुलिस इसमें जितनी वैधानिक कार्यवाही होगी सभी नियमानुसार करेगी। क्या वजह क्या थी विवाद की? कल वजह केवल इतनी थी कि दो पक्ष, एक पक्ष गाना बजा रहा था, दूसरा पक्ष रामायण कर रहा था। सामने आ गए तो ये बात तुम धीमा करो, लेकिन उसका कोई इतना बड़ा रिएक्शन कार्रवाई की गई, क्योंकि पुलिस के सामने भी पत्थरबाजी की गई। कल दो पक्षों में मामूली कहासुनी हुई थी। उसी कहासुनी को लेकर आज पुनः दोनों पक्ष आमने सामने हो गए, जिसमें एक पक्ष का आरोप था कि महात्मा बुद्ध जी की मूर्ति को खंडित किया गया है। इस पे पुलिस तत्काल जब सूचना हुई, यहाँ दो सिपाही पहले से थे और पुलिस आई और दोनों पक्षों को शांत कराई। दोनों पक्षों से तहरीर प्राप्त कर ली गई है, मुकदमा लिखा जा रहा है। यहाँ पे शांति व्यवस्था के लिए पर्याप्त पुलिस बल व्यवस्थापित कर दिया गया है। इस समय गांव में पूर्णतः शांति है, कोई बात नहीं है और पुलिस इसमें जितनी वैधानिक कार्यवाही होगी सभी नियमानुसार करेगी। क्या वजह क्या थी विवाद की? कल वजह केवल इतनी थी कि दो पक्ष, एक पक्ष गाना बजा रहा था, दूसरा पक्ष रामायण कर रहा था। सामने आ गए तो ये बात तुम धीमा करो, लेकिन उसका कोई इतना बड़ा रिएक्शन कार्रवाई की गई, क्योंकि पुलिस के सामने भी पत्थरबाजी की गई। कल दो पक्षों में मामूली कहासुनी हुई थी। उसी कहासुनी को लेकर आज पुनः दोनों पक्ष आमने सामने हो गए, जिसमें एक पक्ष का आरोप था कि महात्मा बुद्ध जी की मूर्ति को खंडित किया गया है। इस पे पुलिस तत्काल जब सूचना हुई, यहाँ दो सिपाही पहले से थे और पुलिस आई और दोनों पक्षों को शांत कराई। दोनों पक्षों से तहरीर प्राप्त कर ली गई है, मुकदमा लिखा जा रहा है। यहाँ पे शांति व्यवस्था के लिए पर्याप्त पुलिस बल व्यवस्थापित कर दिया गया है। इस समय गांव में पूर्णतः शांति है, कोई बात नहीं है और पुलिस इसमें जितनी वैधानिक कार्यवाही होगी सभी नियमानुसार करेगी। क्या वजह क्या थी विवाद? Well, let's watch Rahul Gandhi, the Congress chief, speaking. बात में डिमोरलाइजेशन है नहीं है ना? थोड़ी मतलब थोड़ा लग रहा है कि भाई ये बड़ा मुश्किल काम है, तो मैं यहां आया हूं आपको बताने कि ये कोई मुश्किल काम नहीं है। ये आप लोगों के लिए आसान काम है और आप देख लेना, हम ये काम गुजरात में पूरा करके छोड़ेंगे। तो हमने
हमने निर्णय लिया है कि कांग्रेस पार्टी में हमें थोड़ा बदलाव लाना पड़ेगा। अभी मैं आपके डिस्ट्रिक्ट के सीनियर नेताओं से मिला और बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ, और उन्होंने 2-3 चीजें मुझे कही जो शायद हर डिस्ट्रिक्ट के नेता कहेंगे। सबसे पहले, जो हमारे बीच में कंपटीशन होता है वो डिस्ट्रक्टिव कंपटीशन होता है, प्रोडक्टिव कंपटीशन नहीं होता है। दूसरी बात, लोकल लोगों को, लोकल डिस्ट्रिक्ट्स के नेताओं को टिकट डिसीजन में शामिल नहीं किया जाता है। टिकट, उन्होंने हमें बताया भैया टिकट हमें पता नहीं कहां से आया, पता नहीं कहां से, मतलब आसमान से टपक के आ जाते हैं, राइट। दूसरी बात जो मैंने पिछली बार कही कि आप लोगों को काफी अच्छा लगा, मैंने कहा कि देखिए 2 तरीके के घोड़े होते हैं, एक रेस का होता है और दूसरा बारात का घोड़ा होता है। अच्छा, उसमें तीसरा भी होता है, उसको जोड़ देता हूं, एक लंगड़ा घोड़ा भी होता है। और आप ही ने मुझे यह बात बताई कि देखिए राहुल जी, प्रॉब्लम क्या है कि कांग्रेस पार्टी कभी कभी रेस के घोड़े को बारात में बेच देती है और बारात के घोड़े को रेस में दौड़ा देती है। तो हम ये बात, इन घोड़ों को हम थोड़ा अलग अलग करना चाहते हैं कि भैया ये रेस का घोड़ा है, ये बारात का घोड़ा है और ये लंगड़ा घोड़ा है, और रेस के घोड़े को हम दौड़ाएंगे, बारात के घोड़े को हम नचाएंगे, राइट। तो हमारे डिस्कशन में से मेन बात क्या निकली कि डिस्ट्रिक्ट को अहमदाबाद से नहीं, डिस्ट्रिक्ट को डिस्ट्रिक्ट से चलाना चाहिए, और डिस्ट्रिक्ट के जो नेता हैं, डिस्ट्रिक्ट के जो लीडर्स हैं, उनको स्ट्रेंथ देनी चाहिए, और खास तौर से जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है उसको जिम्मेदारी देनी चाहिए, उसको पावर देनी चाहिए और उसके हाथ मजबूत करने चाहिए। और यह काम हम अब शुरू कर रहे हैं। भैया जी आए हैं, ये मंत्री रहे हैं, सीनियर हैं, इनको हमने यहां भेजा है। गुजरात के भी लोग आए हैं, जिग्नेश आए हैं, 2-3 और लोग आए हैं। ये आपसे बातचीत करके हमारे को 5-6 नाम देंगे जिनमें से आपका डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट चुना जाएगा। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट नहीं होगा। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट इस डिस्ट्रिक्ट को चलाएगा, अकेले नहीं चलाएगा, आपकी मदद के साथ चलाएगा, मगर उसके डिसीजन से डिस्ट्रिक्ट चलेगा। डिस्ट्रिक्ट कमेटी के डिसीजन से डिस्ट्रिक्ट चलेगा, ऊपर से कोई अलग अलग तरीके के कैंडिडेट्स, डायरेक्शन, ये वो नहीं दे पाएगा। तो ये स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं। हम चाहते हैं कि संगठन और इलेक्शन लड़ने वालों के बीच में कनेक्शन हो। आजकल क्या होता है, कांग्रेस पार्टी का संगठन चुनाव जितवाता है और एक बार व्यक्ति एमएलए बन जाता है, एमपी बन जाता है, तो वो कांग्रेस के संगठन को भूल जाता है
और कहता है भैया तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, मैं जा रहा हूं। तो अब हम संगठन के माध्यम से लोगों को चुनेंगे, संगठन डिसाइड करेगा कि चुनाव कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा, कोई एक व्यक्ति ऊपर से नहीं डिसाइड करेगा। ये हमारा गुजरात में पहले प्रोजेक्ट है। गुजरात में हम इसको टेस्ट कर रहे हैं क्योंकि हम मैसेज देना चाहते हैं कि गुजरात हमारे लिए सबसे Well, the Police Foundation Day celebrations in Jodhpur, Rajasthan were marked by a series of events led by Police Commissioner Rajendra Singh. The festivities commenced with a parade featuring the participation of all police officers and staff showcasing their discipline and teamwork. An exhibition of weapons ranging from historical to modern highlighted the evolution of policing in the region. Following the parade, tree plantation and various other initiatives were organized to promote environmental awareness. Singh addressed the gathering, stressing the importance of continuous improvement and the police force commitment to serving the community with even greater dedication and efficiency. पुलिस लाइन जोधपुर आयुक्त कार्यालय के प्रांगण में हम सभी पुलिसकर्मी पुलिस दिवस आयोजन में सम्मिलित हुए। इसमें सारे मुलाजमान अधिकारी, आज परेड का प्रदर्शन किया गया। उसके बाद में परेड के बाद में वृक्षारोपण, दूसरा अन्य आयोजन किए जा रहे हैं और हम सब लोग बेसिकली इस स्थापना दिवस पे बेहतर से बेहतर काम करने का प्रयास करते हैं और करते रहे। कि हम लोगों ने प्रदर्शनी में बेसिकली जो पुलिसिंग के विभिन्न आयाम हैं उनको प्रदर्शित किया है, चाहे हमारी कंपनियों का फॉर्मेशन हो, चाहे और अनुशासन से जुड़े हुए पेट्रोलिंग के बारे में हो, जितने भी हम लोगों ने प्रयास पुलिस में किए हैं उन सबका प्रदर्शन किया है। पुराने हथियार है उनका प्रदर्शन किया है और बेसिकली जो पुलिस में जो भी कुछ चल रहा है वो पब्लिक को शेयर करने के लिए हमने पब्लिक के लोगों को भी इनवाइट किया। स्कूल के बच्चे इस प्रदर्शनी को देखेंगे तो सभी लोगों को इनवाइट किया ताकि हम लोग जो कर रहे हैं एटलीस्ट सबको पता रहे। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर में ग्रेटर राजस्थान में अपना विलय किया। आदरणीय कमिश्नर महोदय साहब के पढ़ाने के पश्चात अब सबसे निवेदन की तालियों में महत्वपूर्ण आयोजन पुलिस परेड। इसमें कैंटीन में रिटायर्ड लोग मेंबर हैं क्या? रिटायर्ड भी आपको भी सर आइए, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा मतलब। और इसका मेंबरशिप लेने में अगर नहीं दे रखी है ना मेंबरशिप, खुश लोगों बहुत अच्छा लगेगा आपको। BJP leader Pratul Shadia reacted strongly to the Enforcement Directorate charge sheet against Congress leaders Sonia Gandhi and Rahul Gandhi in the National Herald case, calling it a classic case of money laundering and criticized the Congress party's protest outside the ED office, saying that such actions are typical of individuals with stains on their record. Shadia emphasized that those who believe in the constitution and law and who are innocent would follow the legal process instead of engaging in protests with drums and slogans. देखिए, नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी पर ईडी ने चार्जशीट दाखिल किया है और ये क्लासिक केस है मनी लॉन्ड्रिंग का कि किस तरीके से बहुत कम पैसे खर्च करके 5000 करोड़ की संपत्ति वाले नेशनल हेराल्ड पे परोक्ष रूप से सोनिया जी और राहुल जी का कब्जा हो जाता है और ईडी ने चार्जशीट दाखिल करके अपनी जो इंक्वायरी है वो पूरी कर ली है।
अब इसमें कांग्रेस जो है पूरे देश में ढोल नगाड़ा कर लेकर जो ईडी के ऑफिस के सामने प्रदर्शन कर रही है, तो ऐसा वही लोग करते हैं जिनके दामन में दाग होते हैं, जिन्हें देश के संविधान और कानून पर विश्वास होता है, जो निर्दोष होते हैं वो अदालती प्रक्रिया पे जाते हैं। लेकिन कांग्रेस सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए देश में तमाम ईडी के ऑफिस के सामने प्रदर्शन कर रही है, और हमारा मानना है कि पहले ही कांग्रेस ने इस प्रदर्शन के जरिए ये स्पष्ट कर दिया है कि जो सोनिया जी और राहुल जी हैं उनके हाथ पूरे तरीके से इस घोटाले में सने हुए हैं। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो 27 मार्च 2010 को सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड एसआईटी ने उनसे पूछताछ की थी। भारतीय जनता पार्टी ने तो पूरे देश में कहीं प्रदर्शन नहीं किया, और बल्कि हम लोगों ने तो एकदम सरकार को, जो भी उस समय की एसआईटी थी, सारा जो है कोऑपरेशन एक्सटेंड किया था। मोदी जी की 9 घंटे तक ग्रिलिंग हुई थी, लेकिन मोदी जी ने एक शब्द नहीं कहा था। बाद में एसआईटी ने उन्हें क्लीन चिट दी, सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दी। लेकिन यहाँ तो माता जी और उनके पुत्र जो है, उन्हें पता है कि अब कानून का शिकंजा उन पर कसता जा रहा है, इसलिए उनकी पार्टी पूरे देश में प्रदर्शन कर ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। देखिए, नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी पर ईडी ने चार्जशीट दाखिल किया है, और ये क्लासिक केस है मनी लॉन्ड्रिंग का, कि किस तरीके से बहुत कम पैसे खर्च करके 5000 करोड़ की संपत्ति वाले नेशनल हेराल्ड पे परोक्ष रूप से सोनिया जी और राहुल जी का कब्जा हो जाता है, और ईडी ने चार्जशीट दाखिल करके अपनी जो इंक्वायरी है वो पूरी कर ली है। अब इसमें कांग्रेस जो है पूरे देश में ढोल नगाड़ा कर लेकर जो ईडी के ऑफिस के सामने प्रदर्शन कर रही है, तो ऐसा वही लोग करते हैं जिनके दामन में दाग होते हैं, जिन्हें देश के संविधान और कानून पर विश्वास होता है, जो निर्दोष होते हैं वो अदालती प्रक्रिया पे जाते हैं। लेकिन कांग्रेस सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए देश में तमाम ईडी के ऑफिस के सामने प्रदर्शन कर रही है, और हमारा मानना है कि पहले ही कांग्रेस ने इस प्रदर्शन के जरिए ये स्पष्ट कर दिया है कि जो सोनिया जी और राहुल जी हैं उनके हाथ पूरे तरीके से इस घोटाले में सने हुए हैं। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो 27 मार्च 2010। Well, that's a wrap for Inside News. Keep watching CVR English.